So the reading passage we are going to do today is the innovation of the modern grocery stores. And this reading, first thing we do is go and check the question types. The question types are, first set of questions is, which paragraph contains the following information? So I think most of you know that if you get this, then what do you have to do? This set of questions. Do you have to do them at number 1, or do you have to skip them for the time being? मैम आई हैव अ क्वेश्चन. Yes. मैम जब भी मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग करती हूँ तो वो तो ऑलमोस्ट सही हो जाते हैं, जब भी मैं ये करती हूँ ये ऑलमोस्ट गलत होते हैं, ऐसा क्यों? That is why I'm going to tell you this. So do them at the end. Okay. When you will do them at the end, at least out of these 5 questions, there will be 2 questions, 1 or 2 questions of which you will not have to search much and you will get the answer in 10 seconds. Okay, because you will have done the other blanks and other questions, like there are blanks and then there are MCQs. So if you have done these questions first, then 1 or 2 answers of these you may be knowing already. Okay, or you may be able to go back to immediately, right? So we'll skip these questions and we'll do the blanks first. So for the blanks, it is very simple. For the blanks, the words before the blank or the words after the blank, they are the keywords, and you have to go inside and look. You have to read the sentence, translate it, look. You know, when you translate it, you will realize what word may be the right word for that blank, and then you can go back and check. Okay, so here you can see when Clarence Saunders was an adolescent, he took a job as a dash in a grocery store. You know what is who is an adolescent? Yes, Ruby, who is an adolescent? Adolescents, teenagers? 14 to 18 mostly specify hote. 13 to 19 are teenagers and 14 to 18 they say adolescents. That is teenage, almost synonymous with teenagers. Okay. So Yes, when Clarence Saunders was an adolescent, he took a job as a dash in a grocery store. He took a job as a dash in a grocery store. अब grocery store है, adolescent है, Clarence Saunders आपके keywords. Okay, quickly look at paragraph 1. यहाँ पे grocery store है, Clarence Saunders नहीं आया अभी. अगले पैरे में देखो Clarence Saunders. Okay, 14 years old. Okay, he was working part time as a clerk. तो क्लर्क आएगा ग्रोसरी स्टोर में. ही वाज वर्किंग एज ए क्लर्क. तो फर्स्ट ब्लैंक आपको मिल गया क्लर्क. ओके, अच्छा ये मुझे बताओ, ये आप यू हैव 1.5 minute पर क्वेश्चन. डू यू थिंक दिस क्वेश्चन वुड हैव टेकन यू मोर देन 1.5 minute टू सर्च? Just think of it. No. So next question is, in the new innovation grocery store, this off should not be here. In the new innovation grocery store, most of the clerks work before was done by dash. तो जो क्लर्क्स का वर्क था बिफोर, उससे पहले, was done by that. ठीक है, done by somebody. Let us see क्लर्क्स का वर्क पहले कौन करता था. यहाँ पे कहीं होना चाहिए. इनोवेशन ग्रोसरी स्टोर में क्लर्क्स का वर्क कौन करता था? Let us see again. In the new innovation grocery store, most of the clerks' work before was done by what the clerk's work was before in the innovation grocery store, it was done by whom? जो पहले क्लर्क्स करते थे वो काम इनमें कौन करता था? मैम कंप्यूटर्स, जो इसमें लाइन है बी में. कहाँ पे है बी बारे में? The 7th, before there were. Before there were computers, long before there were computers, clerks कहाँ है? See here, entering a store, the customer would approach the counter or wait for a clerk to become available and place an order, either verbally or
as was often the case of for boys running the counter throughout the store. Select the items, some from shelves so high, some from shelves so high that long handled grasping device had to be used and bring them back to the counter to be tailed and tagged. तो पहले clerks करते थे या ये boys करते थे. The process might be expedited by the customer calling or sending in the order beforehand, or by the order being handled by delivery boy, but otherwise it did not vary. Saunders, a flamboyant and innovative man, noticed that this method resulted in wasted time and expense. So he came up with an unheard of solution that would revolutionize the entire grocery store. He developed a way for shoppers to serve themselves. So clerks की जगह किसने ले ली? जो क्लर्क्स थे उसकी जगह किसने ले ली? शॉपर्स आएगा या कस्टमर्स आएगा? जगह जगह कस्टमर वर्ड भी आया हुआ है. ओके, सो shoppers to serve themselves, so it was shoppers or customers. See, in the new innovation grocery store, most of the clerks' work before was done by shoppers or customers. ठीक है? Before word यहाँ पे कुछ extra है, confusing है. Most of the clerks' work was done by shoppers or customers. ठीक है? Now is it more clear? There is some typo errors or misprints, so ये ठीक कर लेना अपनी जो अगर आपने print out निकलवाए हैं तो, okay, or in your book. In Saunders' new grocery store, the section where customers finish the payment was called dash. अब finish the payment. आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है? जब finish the payment करनी होती है तो फिर कौन सा सेक्शन आता है? चलो इधर देखो. फाइनल कार्ट काउंटर पे होगा. फाइनल कार्ट पे फिर क्या होता है? अब देखो यहाँ पे पहले लॉबी है, फिर पेमेंट जहाँ फिनिश कहाँ होती है? डेस्क पे होती है, लास्ट वाला चेकआउट होता है. फ्रंट लॉबी फॉर्मिंग एन एंट्रेंस एंड एग्जिट एंड चेकआउट. तो चेकआउट हो गया ना, फिनिश द पेमेंट. तो ये कहाँ हो रही है? चेकआउट लॉबी में हो रही है. लॉबी. देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से. In Saunders' new grocery store, the section where customers finish the payment was called what? तो उस सेक्शन को क्या कहते हैं? So the section. हाँ, तो वो लॉबी के फ्रंट में था. तो लॉबी को कहते हैं ना. लॉबी is that section. Okay, front lobby. ये देखो, for his new cafeteria grocery, Saunders divided his grocery into three distinct areas or sections. Means sections. So first section is lobby. ठीक है? लॉबी पे चेकआउट होता है ना. चेकआउट इज वेयर फिनिश द पेमेंट, वेयर यू फिनिश द पेमेंट. चेकआउट करने का मतलब है पेमेंट फिनिश होती है आपकी. ठीक है? ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हो तो लास्ट स्टेप है ना चेकआउट, पेमेंट फिनिश करने के लिए. ठीक है? तो आगे देखो. Another area in his store which behind the public area was called the dash, where only internal staff another area in his grocery store which was behind the public area was called the dash, where only internal staff could access. Okay, which only internal staff could access. तो ये जो है एरिया कोई है जिसमें सिर्फ इंटरनल स्टाफ जा सकता था. थर्ड पॉइंट में स्टॉक रूम. हाँ, कहाँ पे था? यहाँ पे सी में लास्ट. हाँ. And a stock room or storage, see customer, another section of his room, the room only allowed for the clerks, which was called the stock room. तो only internal staff है, stock room है. ठीक है? That is स्टोरेज रूम भी हो सकता है. कौन सा रूम बताओ? ओके, कौन सा रूम बोल रहे हो? स्टोरेज रूम. हाँ, और स्टोरेज रूम भी बोल सकते हो. ठीक है? वन वर्ड है. वन वर्ड एंड और ए नंबर है ना. अगर आप स्टोरेज रूम डालोगे तो 2 वर्ड्स हो जाएंगे. बट यस, यू हैव अ मेथड टू मेक इट वन वर्ड. हाइफन. यस. ओके. स्टॉक रूम, स्टोरेज रूम, यू कैन मेक इट वन वर्ड. ओके. स्टॉक रूम तो वैसे ही वन वर्ड है. स्टोरेज रूम करो तो हाइफन डाल दो. दैट विल बी करेक्ट. दे कांट मेक इट रॉन्ग. ओके. बट अगर हाइफन नहीं डाला तो 0 हो जाएगा. ये आपको पता है ना इस बात का? हाँ. Okay, next is at dash, where customers were under surveillance. At dash.
Customers were under surveillance. मतलब कस्टमर्स के ऊपर कोई नजर रख रहा था यहाँ पे। गैलरीज में। हाँ देखो कितना उसके ऊपर है आंसर। देखो रेयरली ऐसे होता है कि एक ब्लैंक आपका नीचे है और अगला ब्लैंक उससे ऊपर है। सो यू हैव टू बी वॉचफुल ऑफ सच थिंग्स ऑल्सो। ओके, अब सर्वेलेंस का मतलब पता है, तो कीप एन आई ऑन कस्टमर्स, वो मतलब उन पे नजर रख रहे थे सुपरवाइजर्स, तो वो कौन सा एरिया है? गैलरीज। क्लियर हो गया सबको? मैम यस। मैम यहाँ पे जो स्टॉक रूम है वो तो पहले ही इकट्ठा लिखा हुआ है वहाँ पे। स्टॉक रूम तो एक ही वर्ड है ना, पर स्टोरेज रूम वो पूछ रहे थे। अगर स्टोरेज रूम लिखना है तो 2 वर्ड्स है। ओके ओके। फिर उसमें हाइफन डाल दो। तभी उन्होंने आंसर्स में स्टॉक रूम लिखा है, बिकॉज 1 वर्ड की ऑप्शन है। ओके, पर यहाँ पे देखो कितना क्लियर लिखा है, विच वॉज कॉल्ड द स्टॉक रूम और स्टोरेज रूम। तो किसी स्टूडेंट ने अभी पूछा कि स्टोरेज रूम लिख सकते हैं, 2 वर्ड हो जाएगा, तो मैंने बोला हाइफन डाल दो तो 1 वर्ड हो जाएगा। दे कैन नॉट मेक इट रॉन्ग। ओके मैम। ओके, बिकॉज Okay. hyphenated words are considered 1 word. ओके ओके। हाँ, नेक्स्ट है at dash where customers were, ये हो गया। at dash customers were नहीं आना चाहिए। customers were under surveillance at galleries. customers were under surveillance. Okay, choose the correct letter A, B, C or D. Write your answers in boxes 11 to 13. Why did Clarence Saunders want to propel the innovation of grocery stores at his age? तो वो ना इसको फास्ट क्यों करना चाहता था, ग्रोसरी स्टोर्स को अपनी उम्र पे, छोटी उम्र पे ही इनको क्यों प्रोपेल करना चाहता था? ए ऑप्शन कह रही है बिकॉज ही वाज एन एंथुसियास्टिक एंड क्रिएटिव मैन, क्योंकि वो एक एंथुसियास्टिक एंड क्रिएटिव मैन था। दूसरा, बिकॉज हिज बॉस वांटेड टू रिफॉर्म द ग्रोसरी इंडस्ट्री, क्योंकि उसका बॉस चाहता था ग्रोसरी इंडस्ट्री को रिफॉर्म करा जाए। बिकॉज ही वांटेड टू डेवलप इट्स एफिशिएंसी, क्योंकि वो उसकी एफिशिएंसी डेवलप करना चाहता था, एंड मेक ग्रेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी बनाना कमाना चाहता था। एंड फोर्थ, बिकॉज ही वरीड अबाउट द फ्यूचर कंपटीशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, क्योंकि उसको फ्यूचर कंपटीशन का फिक्र था कि फ्यूचर में बहुत कंपटीशन आने वाला है। ओके, अब हम अंदर जाएंगे। व्हाई डिड ही वांट टू प्रोपेल द इनोवेशन ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स एट हिज एज? अब देखो यहाँ पे कुछ है, प्रोपेल कहाँ करना चाहता था? व्हाई डिड ही वांट टू प्रोपेल? यहाँ पे कहीं आंसर आना चाहिए। व्हाई ही वांटेड टू प्रोपेल? revolutionize the entire grocery यहाँ industry. पे है, हाँ यहाँ पे है। Saunders, a flamboyant and innovative man, noticed that this method result in wasted time and expense. एक तो समय बर्बाद होता था, एक खर्चा होता था। So he came up with an unheard of solution that would revolutionize the entire grocery industry. He developed a new way. And why did he want? Because इससे wasted time and expense था, समय भी और पैसा भी, तो ये पैसा भी बचाना चाहता था और समय भी बचाना चाहता था। कौन सी ऑप्शन जच रही है इनके लिए? समय बचाना, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। हाँ अभी देखो, समय बचाना, अगर कोई काम आप, efficiency. अगर हम कहते हैं दैट पर्सन इज वेरी एफिशिएंट, मतलब वो थोड़े समय में वो काम कर लेता है, यही बोलते हैं ना। एफिशिएंसी क्या होती है? कम समय में कोई काम करना, बीइंग इफेक्टिव। ठीक है। और फिर वो दूसरा था कि प्रॉफिट, वो वेस्टेड मनी बचाना चाहता था जो वेस्ट हो रही थी, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सी ऑप्शन है। अब समझ आ गया, वहां पे आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू क्लेरेंस सॉन्डर्स फर्स्ट स्टोर ऑफ पिगली विगली। उसके फर्स्ट स्टोर को क्या हुआ? ए, कस्टमर्स कंप्लेन्ड अबाउट इट्स इम्प्रैक्टिबिलिटी एंड इनकन्वीनियंस। कस्टमर्स ने कंप्लेन करा कि ये इम्प्रैक्टिकल है, इनकन्वीनियंट है। दूसरा, इट एंजॉयड अ ग्रेट बिजनेस एंड वाज अपडेटेड इन द फर्स्ट 12 मंथ्स। उसको बहुत बिजनेस मिला फर्स्ट स्टोर को, और पहले 12 महीने में ही अपडेट हो गया। It expanded to more than 1,000 franchise stores during the first year. पहले साल में ही 1000 stores हो गए उसके। Saunders was required to have his new idea patented and open more stores. Saunders को ना required to का यहाँ पे क्या मतलब है? Compelled to, उसको उसके लिए compulsory करा गया कि आइडिया पेटेंट करवाए और स्टोर्स खोले। और नेक्स्ट, अब हम अंदर जाते हैं कि इसके फर्स्ट स्टोर को क्या हुआ। फर्स्ट स्टोर पिगली विगली की बात क्या हुई है, यहाँ पे है। On September 6, 1916, Saunders launched his self-service revolution in the USA by opening the first self-service Piggly Wiggly store. यह उसने खोला। फिर देखो, अब देखो इसके ऊपर, इसके बाद में इसके बारे में क्या आएगा, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है?
यहाँ पे अगले पैरे में आंसर है. Piggly Wiggly and the self-service concept took off. Saunders opened 9 stores in the first year. अब फर्स्ट ईयर्स में 1000 स्टोर्स है, वो तो आउट हो गया ऑप्शन. आप एलिमिनेशन मेथड भी करते जाओ. एलिमिनेशन मेथड पता है एमसीक्यूज में? जो ऑप्शन नहीं लगती उसको काट दो. क्रॉस कर दो. अब उसमें एक ऑप्शन थी 1000 स्टोर खुले, 1000 वाली तो क्रॉस आउट हो गई ना. ठीक है. अब कस्टमर्स ने कंप्लेन करी. अब कंप्लेन तो की नहीं हो सकती बिकॉज इट टुक ऑफ. टुक ऑफ मीन बहुत तेजी से चढ़ गया. ठीक है. तो ए भी आउट हो गई, ए आउट हो गई, सी आउट हो गई. और पेटेंटेड की बात कहाँ करिए कि उसको पेटेंटेड. उसने सॉन्डर्स सूट पेटेंटेड हिज कॉन्सेप्ट. उसने खुद पेटेंट करा. क्या ही वाज रिक्वायर्ड टू पेटेंट? उसको बोला नहीं. हाँ, किसी ने तो उसको बोला नहीं किसी ने. हाँ बोला नहीं. तो वो So लास्ट that वाली is ऑप्शन also है off. बस. So only one option is left. It enjoyed a great business. Took off का मतलब है enjoyed a great business and was updated in the first 12 months. और पहले 12 months में ही अपडेट हो गया. अब मेरे को कोई पूछता है ना, इंद्रूप ने जो मेरे बेटे ने जो ये सेंटर खोला था नवा शहर में, वो मेरे को पूछते कैसा चला. मैं कहा इट हैज टेकन ऑफ. मतलब बहुत तेजी से चल गया. फर्स्ट क्लास. ठीक है. एंड you know he is like he's trained his teachers there very well and it has really taken off well despite the fact that there were lockdowns and things like that. Of course lockdown mein band rakha hai, but then students waited and rejoined after that and it has really taken off well. So took off का मतलब होता है अच्छे से चल गया. और यहाँ पे भी यही मतलब है enjoyed a great business and was updated in the first 12 months. So first 12 months में first year में 9 stores और खुल गए. अपडेट हो गया ना. ठीक है. So that is B. Next question. MCQ, last MCQ है. What left to Clarence Saunders after his death in 1953? What left to? यहाँ पे कुछ misprint है. चलो anyways देखते हैं. After his death in 1953, उसके पास क्या रह गया? What was left to? Okay, what was left to आ सकता है. After his death. Okay. A fully automatic store system opened soon near his first store. एक पूरा automatic store system खुल गया. The name of his store, the Piggly Wiggly, was very popular at that time. His name was usually connected with the famous shop, the Piggly Wiggly, in the following several years. उसका name इसके साथ connected रहा. And his name was painted together with the name of his famous store. उसके name को paint किया गया with the name of that. What was left? Okay. यहाँ पे देखो 53 की बात हुई है ना. ठीक है. अब यह 53 वाला क्वेश्चन में 53 ईयर है आफ्टर हिज डेथ. So until the time of his death, Saunders was developing plans for another automatic store system called the Food Electric, but the store never opened. ठीक है. वो कभी खुला ही नहीं. तो फिर कौन सा ऑप्शन आउट हो गया? ऑटोमेटिक आउट हो गया. पिगली विगली बड़ा पॉपुलर था. पिगली विगली बड़ा पॉपुलर था. यहाँ पे उसका नेक्स्ट ऑप्शन ही आंसर है. हाँ, उसका नेक्स्ट ऑप्शन है. His name was usually connected with his fame, but his name was well remembered along with the name. तो यही वाला आंसर है. जो ये वाली ऑप्शन है, ये वाला आंसर है C. Okay. So the answer to 11th question is C, 12th is B, and 13th is again C. Okay. So it's C, B, C. Okay. Now we have done the blanks. We have done this. Now we'll read these. Okay. And we'll see कि कौन से पैरे में ये चीज आ सकती है. How Clarence Saunders' new idea had been carried out. जो इसका न्यू आइडिया था, ये किस तरीके से कैरी आउट किया गया, ये हमें देखना है कौन से पैरे में है. Introducing the modes and patterns of groceries before his age. उसके समय से पहले जो ये ग्रोसरीज थी, ये कैसे चलती थी. Clarence Saunders declared bankruptcy a few years later. Clarence Saunders ना उसका दिवालिया घोषित कर दिया गया कुछ साल बाद. Descriptions of Clarence Saunders' new conception. उसका जो नया conception था, उसकी description, वो कैसा था, क्या था. The booming development of his business. उसके business की booming development. अब booming development आपको पता है, आपने अभी पढ़ा था. Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ, ये E है. तो took off and booming 12 हो गए, खुल गए. तो ये तो straight way आपको एक ना बिना पढ़े भी आपको एक पता है that this is E. ठीक है. 5th का आंसर E है.
ठीक है, अब आपने सारे ये ऑप्शंस पढ़ लिए, यू गो पैरा बाय पैरा। बैंक्रप्सी वर्ड देख लो कहाँ पे आपको मिलेगा बैंक्रप्सी, एफ एफ में में भी है मैम। ये एफ में है बैंक्रप्सी, तो ये यहाँ पे आप एफ डाल दो, ठीक है, बैंक्रप्सी वाला। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लेरेंस सॉन्डर्स न्यू कंसेप्ट, उसके नए कॉन्सेप्ट को पूरा डिस्क्राइब किसी पैरे में किया गया, और उसका न्यू कॉन्सेप्ट कैसे कैरी आउट हुआ, और तीन में न्यू मैम। और उसके बिफोर, उसके टाइम के ये मोड्स एंड पैटर्न्स क्या थे ग्रोसरीज के, जो उसके टाइम से पहले जो बात होगी वो शुरू में होगी ना। हाँ जी। ये तो ये है ग्रोसरी स्टोर्स एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, उससे ये ए आंसर है, ठीक है, दिस इज ए। उसके पहले ग्रोसरीज क्या थी, उसका आंसर ए हो गया। अब आपको दो आंसर्स और ढूंढने हैं, आपको सेकंड का आंसर मिल गया है, और फिफ्थ का आंसर मिल गया है, और एक और आंसर मिल गया है एफ वाला, थर्ड का। सो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ मिल गया, 1 और 4 रह गया। अब 1 और 4 एक बार दोबारा पढ़ लो। हाउ क्लेरेंस सॉन्डर्स न्यू आइडिया हैड बीन कैरिड आउट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज न्यू कॉन्सेप्ट। अब देखो अंदर से उसका आइडिया कैसे कैरी आउट हुआ। मैम सी में डेवलप्ड हिज कंसेप्ट। ओके, सी में उसका कॉन्सेप्ट है, हाँ, डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट, यहाँ से आंसर है, उसका आंसर सी कर दो। और एक रह गया, एक क्वेश्चन रह गया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट वाला, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये आपको मिल गया, और आपको ये वाला रह गया, हाउ हिज न्यू आइडिया हैड बीन कैरिड आउट। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, ये देखो। तो ये लॉन्च करा उसने फर्स्ट, तो ये उसने लॉन्च करा, फिर 9 और हुए, फिर उसने डी में, हाँ डी है आंसर, ठीक है, डी, दिस इज आंसर। ओके, सो हाउ डिड यू फाइंड दिस रीडिंग, इजी और डिफिकल्ट? मैम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दो लास्ट वाले को। हाउ हिज न्यू कॉन्सेप्ट हैड बीन कैरिड आउट है, देखो उसने कैसे कैसे कैरी कैसे आउट मैम, करा। मतलब उसका डेवलपमेंट हुआ। हाँ, मतलब कैसे, किस तरह से वो कैरी आउट हुआ, किस तरह से वो चलता था। ठीक है। तो वो कैरी आउट कैसे हुआ कि जो स्टोर शॉपर्स थे वो शॉप क्लर्क की बर्सी पे नहीं थे, खुद रोम करते थे, मर्चेंडाइज चेक करते थे, अपनी अपनी ट्रॉली में डालते थे, ठीक है, प्राइसेस जो थे क्लियरली मार्क थी, कोई किसी कस्टमर को शॉपकीपर ये नहीं प्रेशराइज नहीं करता था कि ये खरीदो ये खरीदो, ठीक है, आपको पता ही है सेल्समैन, नहीं तो आप किसी दुकान में जाओ तो ये खरीदो वो खरीदो, आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपको जो चीजें उनकी उन्होंने बेचनी है वो आपको एक तरह से बार बार दिखाएंगे कि आपका मन जो है वो हो जाए उनको बाय करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज इट, एंड ये रीडिंग आपकी हो गई। टुडे देयर इज नो क्लास फॉर द जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स आफ्टर दिस, एंड वी विल गेट बैक फॉर द प्रोसेस ग्राफ क्लास। मैं ना प्रोसेस ग्राफ क्लास के लिए देयर इज अ पैसिव वॉइस वाला एक मेरा वीडियो है, वो मैं पैसिव वॉइस का वीडियो आपको अभी लिंक शेयर कर रही हूँ, आप सबने अभी वो वीडियो देखना है, और जैसे ही वो वीडियो जितने मिनट का है वो खत्म होगा मैं अपनी क्लास शुरू कर लूंगी, तो मेरा पैसिव वॉइस टीच करने का टाइम कम हो जाएगा और मैं प्रोसेसेस डायरेक्टली आपको पढ़ाने लग जाऊंगी, ठीक है। तो पैसिव वॉइस वाला वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, प्लीज उसको अभी देख लो लगा के, ठीक है। आर यू ऑल इन फॉर वॉचिंग दैट वीडियो राइट नाउ? Yes, ma'am. So I'll be sharing it in the groups, ठीक है, और GT students I'll see you tomorrow, okay, चलो bye. Okay, ma'am. Bye, ma'am. I will get back with the same link. मैम हाँ जी, मैम किसी दिन आप जीटी के जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है वो करवा दो, थोड़ा सा ट्रिक पता चल जाए, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है। हाँ चलो वो कर लेंगे, वो एकेडमिक वालों को भी हेल्प करेंगे क्योंकि बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, ठीक है, we'll do that, no ओके, issues, थैंक यू मैम। चलो ओके।